Hello students, I am Smera Malik and I am going to start the first chapter of chemistry, which is chemical equilibrium. And the first topic of this chapter which I will discuss is reversible reaction and dynamic equilibrium. टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले मैं इक्विलिब्रियम का मीनिंग बताऊंगी कि इक्विलिब्रियम किसे कहते हैं. इक्विलिब्रियम मीन्स बैलेंस स्टेट and there are so many examples of equilibrium found in nature. For example, we inhale oxygen and exhale carbon dioxide while plants consume carbon dioxide and release oxygen. यानी अगर हम एटमॉस्फेयर से ऑक्सीजन गैस इनहेल करते हैं तो ऐसा नहीं है कि एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन की मिकदार कम हो जाती है, क्योंकि प्लांट्स ऑक्सीजन गैस प्रोड्यूस करते हैं जिससे एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन गैस की क्वांटिटी मेंटेन रहती है. और अगर प्लांट्स कार्बन डाइऑक्साइड गैस एटमॉस्फेयर से लेते हैं, इसी तरह कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी कम नहीं होती है, क्योंकि दूसरी तरफ ह्यूमंस कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज करते हैं. इस तरह से एनवायरनमेंट में एक बैलेंस कायम हो जाता है. इक्विलिब्रियम और इसकी टाइप्स के बारे में मैं आज के टॉपिक में फर्दर एक्सप्लेन करूंगी. Students, there are some important terms related to the topic which I will discuss one by one, and these are chemical reaction, reactants, products, types of chemical reactions and dynamic equilibrium. As you know, chemistry is related to chemical reactions. अब अगर केमिस्ट्री में केमिकल रिएक्शंस को स्टडी किया जाता है तो हमें पता होना चाहिए कि केमिकल रिएक्शन क्या होता है. इसलिए मैं पहले केमिकल रिएक्शन को डिफाइन करना चाहूंगी. So a chemical reaction is defined as a process in which one or more substances are converted into other one or more substances. Students, here is an example of a chemical reaction. For example, when carbon and oxygen gases react with each other, they convert into carbon dioxide. इस एग्जाम्पल में कार्बन और ऑक्सीजन दो सब्सटेंसेस हैं जो कि एक दूसरे के साथ कंबाइन होने के बाद कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाती हैं और कार्बन डाइऑक्साइड एक नई सब्सटेंस बन जाती है, और ये एक केमिकल रिएक्शन की एग्जाम्पल है. To write a chemical reaction, there are two things. For example, one is reactant and other is product. Let me define reactants. In a chemical reaction, the substances that combine are called reactants. For example, in above chemical equation, carbon and oxygen are reactants. Now I will define products. In a chemical reaction, the new substances formed by combining reactants together are called products. For example, in the above chemical reaction, carbon dioxide formed is an example of a product. Let's come to the topic. First of all, I will discuss the types of chemical reactions, and these are reversible reactions and irreversible reactions. Firstly, I will discuss about irreversible reactions. Let's define irreversible reactions. Those chemical reactions in which the products do not recombine to form reactants are called irreversible reactions. यानी कि ऐसे केमिकल रिएक्शंस जिनको रिवर्स ना किया जा सके, जिनमें एक बार प्रोडक्ट्स बन जाएं तो वो अगेन रिएक्टेंट्स में कन्वर्ट ना हो, तो ऐसे रिएक्शंस irreversible reactions होते हैं. For example, when two moles of hydrogen combine or react with 1 mole of oxygen in the presence of platinum catalyst in an open flask, they produce 2 moles of water molecules. इस रिएक्शन में मैंने कैटालिस्ट का जिक्र किया है, जिसके बारे में आपको पहले भी नाइन्थ क्लास में बताया जा चुका है. एक बार फिर मैं इसको डिफाइन करूंगी. A catalyst is a substance which speeds up a chemical reaction but itself does not change in a chemical reaction. Irreversible reaction को समझने के लिए एक सिंपल सी एग्जांपल है
कि जब एक बार दूध को बॉईल कर लिया जाता है तो फिर इसे दोबारा रॉ मिल्क यानी कच्चे दूध में कन्वर्ट नहीं किया जा सकता। यानी एक चीज जब पहले जिस हालत में मौजूद थी उसे उसी हालत में दोबारा ना लाया जा सके तो फिर ये एक इरिवर्सिबल रिएक्शन होगा। Now I will discuss characteristics of irreversible reactions, and these are: number one, irreversible reactions are supposed to complete reactions. Irreversible reactions को complete reactions कहा जाता है क्योंकि ऐसे reactions के अंदर जब products बन जाती हैं तो वो again reactants में convert नहीं होती हैं। Second property irreversible reactions की है, they are represented by putting a single arrow between reactants and products. Number third property है irreversible reactions की, they go from left to right. लेफ्ट टू राइट यानी एक केमिकल रिएक्शन में जहां पर रिएक्टेंट्स हैं वो लेफ्ट साइड है और प्रोडक्ट वाली साइड राइट साइड है। Let's go ahead and discuss the second type of chemical reaction, which is reversible reaction. Reversible reactions are defined as those reactions in which products can recombine to form reactants are called reversible reactions. रिवर्सिबल रिवर्स से वर्ड है यानी जिसे रिवर्स किया जा सके और विच हैज़ द एबिलिटी टू गो बैक, यानी कि जिसमें प्रोडक्ट्स एक बार बनती हैं तो वो प्रोडक्ट्स अगेन रिएक्टेंट्स में कन्वर्ट हो जाती हैं, तो ऐसे रिएक्शंस रिवर्स रिएक्शंस होते हैं, तो इसलिए इनको रिवर्सिबल रिएक्शंस का नाम दिया जाता है क्योंकि इनको रिवर्स किया जा सकता है। अगर रिएक्टेंट से प्रोडक्ट्स बनाई जाती हैं तो दोबारा से प्रोडक्ट्स जो हैं वो रिएक्टेंट्स बना लेती हैं, तो इसलिए ये रिएक्शन जो है ये एक रिवर्सिबल रिएक्शन हो जाता है जिसमें प्रोडक्ट्स रिवर्स होके तो रिएक्टेंट्स में कन्वर्ट हो जाती हैं। रिवर्सिबल रिएक्शंस की भी फर्दर टू टाइप्स हैं, फॉर एग्जांपल फॉरवर्ड रिएक्शन एंड रिवर्स रिएक्शन। Let us discuss a reaction between hydrogen and iodine. In this reaction, one of the reactant hydrogen is colorless while iodine is in purple color. When hydrogen and iodine vapors are heated in a closed flask, then hydrogen iodide is formed, and as a result, purple color of iodine fades or disappears. जब फ्लास्क में आयोडीन का कलर गायब हो जाए तो इसका मतलब है कि प्रोडक्ट बन चुकी है, और ऐसे रिएक्शंस जिनमें रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट हो जाएं तो ऐसे रिएक्शंस को फॉरवर्ड रिएक्शन का नाम देंगे। एंड दीज रिएक्शंस गो फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, यानी कि रिएक्टेंट से प्रोडक्ट्स का बन जाना, लेफ्ट टू राइट रिएक्शन का होना, ये फॉरवर्ड रिएक्शन होगा। और दूसरी सूरत में जब सिर्फ हाइड्रोजन आयोडाइड को क्लोज फ्लास्क में कंटिन्यूसली हीट किया जाएगा तो फिर दोबारा से पर्पल कलर फ्लास्क में नजर आने लगेगा क्योंकि ये रिएक्शन रिवर्स होगा और दोबारा आयोडीन वेपर्स बनने लगेंगे और हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होगी। और इस रिएक्शन में हाइड्रोजन आयोडाइड एज अ रिएक्टेंट एक्ट करेगा और हाइड्रोजन एंड आयोडीन एज अ प्रोडक्ट एक्ट करेंगे। So this reaction is reverse of the above reaction and is called a reverse reaction. जब इन दोनों रिएक्शंस फॉरवर्ड एंड रिवर्स रिएक्शंस को एक साथ इकट्ठा लिखा जाएगा तो फिर डबल एरो से इस रिएक्शन को रिप्रेजेंट किया जाएगा, जैसा कि बुक के अंदर पेज नंबर 3 पे रिवर्सिबल रिएक्शन दिखाया गया है। और इस रिएक्शन के अंदर लेफ्ट साइड पे रिएक्टेंट्स हैं हाइड्रोजन एंड आयोडीन और राइट साइड पे प्रोडक्ट है हाइड्रोजन आयोडाइड। लेट्स डिस्कस कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रिवर्सिबल रिएक्शंस। रिवर्सिबल रिएक्शंस की कैरेक्टरिस्टिक्स इरिवर्सिबल रिएक्शंस के ऑपोजिट हैं, एंड दीज आर कैरेक्टरिस्टिक्स आर: नंबर 1, रिवर्सिबल रिएक्शंस आर सपोज्ड टू इनकम्प्लीट रिएक्शंस। रिवर्सिबल रिएक्शंस इनकम्प्लीट रिएक्शन कंसीडर किए जाते हैं क्योंकि ऐसे रिएक्शंस के अंदर एक तरफ रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट होते हैं तो दूसरी तरफ प्रोडक्ट्स अगेन रिएक्टेंट्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। इस तरह से ये रिएक्शंस दोनों तरफ से प्रोसीड करते हैं, दोनों डायरेक्शंस में प्रोसीड करते हैं और ये रिएक्शंस कभी भी कंप्लीट नहीं होते हैं। सेकंड प्रॉपर्टी है रिवर्सिबल रिएक्शंस की, दे आर रिप्रेजेंटेड बाय डबल एरो। नंबर थर्ड प्रॉपर्टी है रिवर्सिबल रिएक्शंस की, दे प्रोसीड फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। राइट टू लेफ्ट जहाँ पर प्रोडक्ट्स मौजूद हैं वो राइट साइड है
और लेफ्ट साइड पे रिएक्टेंट्स हैं। अब ये जो रिवर्सिबल रिएक्शंस के बारे में आपको बताया है मैंने, इस रिवर्सिबल रिएक्शंस के अंदर प्रोडक्ट हाइड्रोजन आयोडाइड है और रिएक्टेंट्स हाइड्रोजन एंड आयोडीन है। जैसा कि मैंने टॉपिक स्टार्ट में बता दिया था कि हम रिवर्सिबल रिएक्शंस और डायनामिक इक्विलिब्रियम को स्टडी करेंगे, तो मैं रिवर्सिबल रिएक्शंस के बारे में आपको बता चुकी हूँ, इसलिए अब डायनामिक इक्विलिब्रियम के बारे में स्टडी करेंगे। सो फर्स्टली आई विल डिफाइन केमिकल इक्विलिब्रियम स्टेट and it is defined as when the rate of forward reaction is the same as the rate of reverse reaction, the composition of the reaction mixture remains constant or remain unchanged and it is called a chemical equilibrium state. इस डेफिनेशन को मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर लूँ, यानी जब इक्विलिब्रियम स्टेट एस्टेब्लिश होती है तो फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शन की स्पीड बराबर होती है, यानी एक तरफ रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट हो जाते हैं तो दूसरी तरफ प्रोडक्ट्स अगेन रिएक्टेंट्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। लेट्स डिस्कस द टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम। These are static equilibrium and dynamic equilibrium. Static equilibrium. Static means to stop. When a reaction stops to proceed, then it is called static equilibrium. For example, एक बिल्डिंग है जो कि खड़ी रहती है और गिरती नहीं है, क्योंकि इस पर अमल करने वाली तमाम फोर्सेस बैलेंस होती हैं जो कि बिल्डिंग को गिरने नहीं देती हैं, और ये एक स्टैटिक इक्विलिब्रियम की एग्जांपल है। Let me define dynamic equilibrium. Dynamic means reaction is still continuing. It means when reaction does not stop, only the rate of forward and reverse reactions become equal to each other but take place in opposite directions. This is called dynamic equilibrium. डायनामिक इक्विलिब्रियम में रिएक्शन स्टॉप नहीं होता है। ऐसे रिएक्शन में सिर्फ फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शंस एक दूसरे के इक्वल रहते हैं, क्योंकि जहाँ रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट हो रहे होते हैं उतनी ही प्रोडक्ट्स अगेन रिएक्टेंट्स में कन्वर्ट हो रही होती हैं, और ये जो दोनों रिएक्शंस हैं ये ऑपोजिटली प्रोसीड कर रहे होते हैं, इनकी डायरेक्शन एक दूसरे के ऑपोजिट होती है। डायनेमिक इक्विलिब्रियम को ग्राफिकली भी एक्सप्लेन किया गया है, जैसा कि बुक में पेज नंबर 5 पे एक ग्राफ दिखाया गया है। इस ग्राफ में वर्टिकली रिएक्शन रेट है, रिएक्शन रेट यानी कि रिएक्शन की स्पीड को शो किया गया है, और हॉरिजेंटली टाइम मिनट्स में लिया गया है। अब इस ग्राफ में देखें जहाँ पर फॉरवर्ड रिएक्शन के बारे में बताया गया है कि फॉरवर्ड रेट ऑफ रिएक्शन डिक्रीजेज। इसका क्या मतलब है कि फॉरवर्ड रिएक्शन स्टार्ट में इसकी स्पीड फास्ट होती है क्योंकि रिएक्टेंट्स की क्वांटिटी ज़्यादा होती है, बट विद द पैसेज ऑफ टाइम रिएक्टेंट्स की क्वांटिटी डिक्रीज होती जाती है और इसके साथ साथ फॉरवर्ड रिएक्शन की स्पीड भी स्लो होती जाती है। और अगर देखा जाए रिवर्स रिएक्शन का, तो रिवर्स रिएक्शन की स्पीड स्टार्ट में ज़ीरो या नेग्लिजिबल होती है क्योंकि प्रोडक्ट्स की क्वांटिटी बिल्कुल कम होती है, बट विद द पैसेज ऑफ टाइम प्रोडक्ट्स की क्वांटिटी इंक्रीज होती जाती है। अगर प्रोडक्ट्स की क्वांटिटी इंक्रीज होगी तो रिवर्स रिएक्शन की स्पीड भी इंक्रीज हो जाएगी, और एक स्टेज ऐसी आएगी जब फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शन की रेट एक दूसरे के इक्वल हो जाएगी, और ये एक बैलेंस स्टेट होगी जिसको इक्विलिब्रियम कहते हैं। And at equilibrium state, rates of forward reaction and reverse reaction become equal to each other but in opposite direction. अब मैं इस टॉपिक को वाइंड अप करूंगी। स्टूडेंट्स, आपने लॉन्ग क्वेश्चंस के नोट्स ऐसे ही साथ साथ बनाने हैं, और शॉर्ट क्वेश्चंस के नोट्स जब यूनिट कंप्लीट होगा तो आपको रिटन फॉर्म में मिल जाएंगे।